Hello students, today we will start chapter number 7 alternating current. Okay, so first theory in this chapter is what AC voltage applied to a resistor. In chapter number 6 हमने लास्ट थियरी देखा था AC जनरेटर और हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था इंड्यूस्ड EMF का कितना था E is equal to E naught sin omega t. We can say E naught is what maximum value of induced EMF. We know that EMF is nothing but what potential difference, okay, which is developed over there. So here we will use the same equation in terms of what potential difference. So here in this theory AC voltage applied to a resistor, in this theory you can see that AC voltage source V is equal to Vm sin omega t, okay, is applied across this resistor R. So here according to Ohm's law I can say that potential difference, okay, across this resistor R is equal to what? V is equal to Vm sin omega t. Okay, here let us assume that current passing through this circuit is I. Here you can see that there is no presence of inductor and capacitor. There is only component which is connected in this circuit is what? Resistor. So it is also known as a purely resistive circuit. Once again, it is known as a purely resistive circuit because in this circuit there is no inductor, no capacitor. It contains only resistor. So here I can say, हम लोग यहाँ पे assume कर लेते हैं, ठीक है, कि I is what? Current flowing through this resistor R. Here, first as shown in a figure, AC voltage source V is equal to Vm sin omega t is applied across resistor R. ओके, इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है. लेट स्मॉल I इज करंट flowing through the resistor. Okay, now we know that what is Kirchhoff's loop rule. Here I can say sum of potential differences around any closed loop, okay, which contains resistors and battery is equal to 0. Here instead of battery, which is a DC source, we are having what? AC voltage source. Okay, so here the Kirchhoff loop rule is also applicable for this AC circuit. Okay, so according to Kirchhoff's loop rule I can say, according to Kirchhoff's loop rule, what happens if I am applying a loop rule in this circuit? Then you can see that if we are moving clockwise direction, then here the potential is what? V of the source, okay, and as the direction of current and direction of journey, then here I can say V minus IR. Potential difference across the resistor, okay, becomes what? Negative. ये क्या होगा? IR negative होगा and that is equal to 0, ठीक है. So here I can say V is equal to IR. The same step will be obtained from Ohm's law as well. You can say from Ohm's law, potential drop across the resistance is equal to what? Applied voltage source. तो in that case आपका V equal to IR ही होगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकते हो I is equal to क्या होता है? V by R होता है, ठीक है. तो देखो V तो क्या है हमारा? Vm sin omega t डिवाइड बाय क्या हो गया? R. ये हो गया आपका करंट, ठीक है. सो हियर आई कैन से करंट I is equal to what? Im sin omega t. ओके, चलो बच्चों, ये करंट का इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिला है. क्या मिला है? Im sin omega t. जो वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया वो कितना था? V इक्वल टू Vm sin omega t. यहाँ पे लिख देते हैं हियर V is equal to Vm sin omega t and let it be equation 1, let it be equation 2. तो बच्चों यहाँ पे Im क्या है? Im is known as what? Amplitude of current, or you can say maximum current. Here Im is
एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और आई कैन से मैक्सिमम करंट। ओके, तो आप देखो बच्चों, ये वाला टर्म अच्छे से ऑब्जर्व करो, वी एम बाई आर ये वाला, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू कैन से दैट सच दैट आई एम क्या होगा, वी एम बाई आर होगा, ठीक है। आई एम क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज पर यूनिट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपके पास इक्वेशन 1 है वो वोल्टेज का इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है वो करंट का इक्वेशन है, which is flowing through this resistor, and potential V is what, potential across this resistor। तो इक्वेशन 1 and 2 को अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आई कैन से हियर इक्वेशन 1 and 2 represents potential across resistance R and current flowing through resistor R, okay, in respective order। So चलो बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन, ये होगा यहाँ पे भी आप देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। तो वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में आप ये साइन के आर्ग्यूमेंट्स देखो, ठीक है। इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 14 ओसिलेशन हमने देखा था, चैप्टर नंबर 15 में हमने क्या देखा था, वेव देखा था। वहाँ पे हमारा एक ऐसे इक्वेशन आता था ओमेगा टी प्लस 5, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, फेज बोलते थे, ठीक है। ये आपका क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी था एट एनी टाइम टी, और जो 5 होता है वो क्या होता था आपका फेज कांस्टेंट होता था, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो, तो ये पूरा आपका फेज होता है, ठीक है। ये साइन और कोसाइन के फॉर्म्स में हमने वेव्स देखे हैं, उसमें जो साइन और कोसाइन के आर्ग्यूमेंट्स थे वो ऐसे फॉर्म में होते थे, जो आर्ग्यूमेंट क्या इंडिकेट करते थे, फेज इंडिकेट करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर वोल्टेज और करंट का इक्वेशन ऑब्जर्व करो तो दोनों के फेज क्या है, सेम है, ठीक है। सो हियर आई कैन से विच इंडिकेट्स that phase of V and I are same at any time t। तो आप यहाँ से देख सकते हो कोई भी टाइम t पे ये आप देख सकते हो, ये जो फेज है वो ओमेगा टी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका फेज क्या है, ये भी ओमेगा टी है, तो दोनों के फेज क्या है, सेम है। तो इससे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ये आपका थीटा इज इक्वल टू वी नो दैट क्या होता है, ओमेगा टी होता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग v एंड i की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे v देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन 90 यहाँ पे थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह थीटा ले रहा हूँ, तो साइन थीटा आपका जब 90 है तो साइन 91 होता है, तो v इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वी एम होगा, ठीक है। और बच्चों जब तब करंट क्या होगा, ठीक है, करंट आप देखो, करंट की वैल्यू तब देखनी है, ठीक है, जब आप यहाँ पे 90 लेते हो थीटा करंट के इक्वेशन में, तो ये भी साइन 90 साइन 91 मतलब आई इक्वल टू आई एम हो गया, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट भी मैक्सिमम। जब थीटा 0 है तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जब 0 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा की यानी कि ओमेगा टी की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, नॉट अ 1। कॉस के केस में 1 होगा, ये साइन के फॉर्म में तो 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। सेम आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0, साइन 0, करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जब थीटा आपका पाई है तो कितना होगा,
तो जब आपका थीटा पाई है, ठीक है, तब यहाँ पे रखो साइन पाई 0 होता है तो वोल्टेज वंस अगेन 0। और यहाँ पे अगर करंट फाइंड आउट करें तो उसमें भी साइन यहाँ पे पाई, तो करंट आपका 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं कितनी, 3π/2 पे, ठीक है, और 2π वाली। तो थीटा जब आपका 3π/2 है तो आप देखो 3π/2 की यानी कि 270 पे वोल्टेज भी कितना होगा जब आपका थीटा 3π/2 है। आप यहाँ पे साइन 3π/2 रखोगे तब के बारे में बात करो, तो जब आप साइन 3π/2 रखोगे, ठीक है, तब कितना होगा, वोल्टेज -Vm होगा और करंट I कितना होगा, -Im होगा, क्योंकि साइन 3π/2 की यहाँ पे 3π/2 रखोगे, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे -Im आएगा, यहाँ पे -Vm आएगा, ठीक है। और जब आप पाई पे फाइंड आउट करोगे तब वोल्टेज का इक्वेशन क्या आएगा, देखो पाई पे तो हमने कर लिया है, 2π पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब आपका थीटा 2π है तो वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पे रखते हैं साइन 2π। देखो साइन 2π तो बच्चों 0 होता है, तो यहाँ पे साइन 2π है वो भी 0, तो करंट भी आपका कितना लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, ठीक है। तो इसके वोल्टेज और करंट के ग्राफ देखो, अभी साइनोसॉइडल है, ठीक है, तो साइन के फॉर्म में वेरी होता है। तो अब देखो साइन पे हर एक एंगल पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज आपको फाइंड आउट करके दिया, तो पता चलेगा इसे ग्राफ कैसे होते हैं। आप देखो दोनों के फेज सेम है, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी क्या है, नेगेटिव है। सो हियर आई कैन से V and I are in same phase, so voltage and current reaches 0, maximum and minimum value at same time, at what, same टाइम, मतलब 0 पे मैक्सिमम और मिनिमम तीनों वैल्यू पे सेम टाइम पे होगा। आप देखो दोनों 0 पे है तब सेम टाइम पे 0 पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मैक्सिमम पे होंगे। ये जब 0 होगा तब ये भी 0, ये जब नेगेटिव है वही सेम टाइम पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। सो ये आई कैन से वोल्टेज एंड करंट विच इज 0, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ओके, एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। सो हेंस आई कैन से phase difference between voltage and current is what, phase difference between voltage and current is 0। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज हमें दिखा करंट का भी ओमेगा टी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 0। अब देखो दोनों मैक्सिमम वैल्यू पे साथ में पहुंचे, मिनिमम वैल्यू पे साथ में पहुंचे, मतलब डिफरेंस है कुछ नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके। सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई इंस्टेंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो तब मुझे वोल्टेज की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और सेम ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, अब देखो ये आप फर्स्ट हाफ साइकिल है पॉजिटिव है, उतना ही नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब सेकंड हाफ जो होगा वो आपका उतना ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की कोई वैल्यू होगी तो सामने उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू -V आपके पास होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो आपके पास अगर यहाँ पे कोई एक इंस्टेंट पे करंट की जितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे करंट की एक ऐसी ही वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये I है तो यहाँ पे ये -I होगी, ठीक है। तो ये जो करंट का इक्वेशन है वो एट एनी टाइम t है, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट है, इसीलिए मैंने स्मॉल I से डिनोट किया। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है एट एनी टाइम t, इसीलिए स्मॉल v से डिनोट किया है, ठीक है। अब यहाँ से आप अच्छे से देखोगे तो वोल्टेज एंड करंट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू जैसे कि हमारे पास है, तो कोई भी टाइम पे आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मैंने I फाइंड आउट की, उससे इक्वल आपको नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसी सेम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जो उससे इक्वल होगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो आप जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है, वो सबका एडिशन करोगे, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट है उसका एडिशन करते हैं, मतलब टोटल कंप्लीट साइकिल पे हम लोग
इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यूज का एडिशन करेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मेरे पास जितनी भी पॉजिटिव होगी उतनी नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव आपके पास होने वाली है। तो पूरे साइकिल पे जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सबका समेशन आप करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो हियर आई कैन से सम ऑफ instantaneous currents, sum of instantaneous currents, okay, on one complete cycle is 0। एक कंप्लीट साइकिल पे कितना होगा, 0 होगा। एंड हेंस वी कैन से सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट over one complete cycle is also 0। एक कंप्लीट साइकिल पे आप एवरेज निकालोगे कितना होगा, 0 होगा। तो अब ये एक कंप्लीट साइकिल पे करंट का एवरेज वैल्यू 0 कैसे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए अगर आपके पास कोई टाइम वेरिंग फंक्शन है, ठीक है, सपोज एफ ऑफ टी है, तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एवरेज निकालने के लिए एनी फंक्शन एफ ऑफ टी का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। मतलब एक साइकिल पे पूरे वन कंप्लीट साइकिल पे आपको एवरेज निकालना है। वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी, 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी डी टी। ये आपको टेक्स्ट बुक में एज ए नोट लिख के दिया है कि आप कैसे साइन और कोसाइन फंक्शन का एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे थे, ये स्टेटमेंट हम लोग मैथमेटिकली अब देखते हैं कि कैसे एक साइकिल पे करंट का एवरेज 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास करंट का इक्वेशन है जो मैंने डिराइव किया था, I इज इक्वल टू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। मतलब मुझे ये करंट का एक साइकिल पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज ऑफ आई कितना होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालेंगे यानी कि 1/t 0 to t आई एम साइन ओमेगा टी, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आई एम कॉन्स्टेंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, इसको बाहर कर देते हैं, 0 to t साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। चलो बच्चों गैस करो फटाफट, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, 0 to t एज इट इज आपका, ठीक है। और ये ओमेगा टी में आप देखो ये जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसका क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा होता है, ठीक है। ये ओमेगा है उसको बाहर ले लेते हैं, तो आई एम आपके पास क्या है, ओमेगा यहाँ पे टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी आपके पास बचा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट आप अप्लाई करने वाले हो तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा एज इट इज, टी की जगह पे मैं रखूंगा 0। अब यहाँ पे cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाने वाला है, 1 होने वाला है। और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे +1 डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, आई एम आपका ओमेगा टी एज इट इज, चलो ये माइनस कॉस, इसको 1 माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, तो ये 1 माइनस कॉस ओमेगा को आपको पता है क्या होता है, ओमेगा तो 2π/t होता है, तो ओमेगा की जगह रखा 2π/t और ये वाला t एज इट इज, ठीक है। चलो देखो टी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉस का आर्ग्यूमेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा ही क्या है, कॉस का आर्ग्यूमेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखो आपका टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे टी कैंसिल कर दोगे तो क्या बचे, cos 2π, ठीक है, क्या बचेगा, cos 2π। अब आपको पता है cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, cos 2π कितना होता है, 1, ठीक है।
तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो अब देखो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये करंट का एक साइकिल के ऊपर एवरेज कितना मिला बच्चों 0। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि करंट का एक साइकिल के ऊपर एवरेज मुझे 0 मिला है। ठीक है, तो इस साइकिल में पावर लॉस कितना हो रहा होगा, क्या 0 हो रहा होगा। करंट 0 है सर, करंट क्या है 0 है। ठीक है, करंट 0 है तो पावर लॉस क्या 0 होगा, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों, क्योंकि देखो पावर जो है वो हमारा क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है आई स्क्वायर आर, मीन्स आई कैन से पी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर नॉट अ आई। पी आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक साइकिल के ऊपर एवरेज करंट का 0 हो रहा है, बट उसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपका एवरेज पावर 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये एवरेज पावर हम लोग नेक्स्ट कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी पावर लॉस इन केस ऑफ दिस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो हमने आगे देखा कि करंट है उसका एवरेज वैल्यू एक साइकिल पे 0 होता है, लेकिन दैट पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, नॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट आई। सो लेट्स सी that power in case of purely resistive circuit is 0 or not. Here from this circuit diagram you can see that whenever current I is flowing through this resistor, there must be some power loss in form of heat. So here we can say power loss in case of purely resistive circuit will never be 0. Now let's see how. Here I can say we know that instantaneous power, बच्चों आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और आपके पास आई का फॉर्मूला है क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू आर। चलो स्क्वायर अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब एवरेज पावर फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज पावर लॉस, तो बच्चों ये पावर जो है हमें उसका क्या लेना है, एवरेज लेना है। ठीक है, चलो तो एवरेज लेने के लिए आप देखो आई एम स्क्वायर, ये आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पूरे टर्म का एवरेज चाहिए। अब आई एम होता है वो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है उसकी कांस्टेंट होती है। आर इज द रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। सो हियर वी नो दैट आर डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई, इट इज अ कांस्टेंट। सो आई एम स्क्वायर अब तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसका आपको एवरेज लेना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन है आपके पास, ठीक है, तो उसका एवरेज लेने के लिए हमने फॉर्मूला देखा कि एवरेज ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज व्हाट 1/t 0 to t एफ टी डी टी मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल। ओके, सो यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ठीक है, तो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल पे एवरेज कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ये जो आपको पावर मिलेगा ना एवरेज पावर, वो कितना मिलेगा, आई एम स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, और यू कैन से आई एम स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2। तो ये मुझे पावर मिलता है इन केस ऑफ एसी सर्किट। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल पे एवरेज हाफ कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आपको पता है इक्वेशन ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और वैसे ही आपको कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वेशन भी आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अब मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो मुझे इसका एवरेज लेना है। तो मैं यहाँ पे देखो एवरेज फाइंड आउट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देख सकते हो ये इक्वेशन मैंने यूज़ कर लिया। अब यह 2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का क्या लेना पड़ेगा, मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है बच्चों आपको, ये हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 2 मैंने सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर का। तो हाफ आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये हाफ एज इट इज माइनस, अब मुझे सिर्फ किसका एवरेज लेना है, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 का। ठीक है,
अब उसमें से भी आप देखो हाफ तो बाहर कर सकते हो आप, हाफ एज इट इज। आपको सिर्फ ये cos 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, ठीक है। चलो तो अब देखो ये हाफ एज इट इज, ये माइनस हाफ भी एज इट इज। अब ये cos 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालना है तो 1/t 0 to t, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी dt ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये 1/2 आपका एज इट इज माइनस, ये माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में -2t माइनस 1/2t। अब ये cos 2 ओमेगा टी का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2 ओमेगा टी। ओके, और ये आर्ग्यूमेंट का फिर से करोगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, 2 ओमेगा आएगा, ठीक है। आपकी लिमिट एज इट इज 0 to t। ये देखो 1/2 माइनस क्या है 1/2t, ठीक है। ये देखो 2 ओमेगा भी हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 ओमेगा हमने बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टी वैरी कर रहे हैं हम लोग, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रख देते हैं तो साइन, ठीक है। उसका आर्ग्यूमेंट देखो 2 ओमेगा की जगह पे रख देता हूँ 2π/t और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखोगे टी की जगह पे 0 तो पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ पे आपके पास देखो क्या है 4 ओमेगा टी। ये देखो टी टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ टी 2 इंटू 2π मतलब कितना 4π साइन 4π। ये -0 था आपका, ठीक है बच्चों। साइन 4π, साइन की वैल्यू 4π कितनी होती है 0, तो ये टर्म 0 होगा आपका। तो देखो 0/4 ओमेगा टी 0, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल पे एवरेज कितना निकला, हाफ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप cos स्क्वायर ओमेगा टी का फाइंड आउट करने बैठोगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एक साइकिल पे, तो वो भी कितना होगा आपका हाफ होगा। अब मैंने एवरेज पावर फाइंड आउट किया इन केस ऑफ व्हाट एसी सर्किट। एसी सर्किट में हमने एवरेज पावर फाइंड आउट किया। वी नो दैट इन केस ऑफ डीसी सर्किट पावर पी क्या होता है I²R होता है, ठीक है। सो हियर टू एक्सप्रेस AC power in terms of DC power, a special value of current is used and that current is known as a effective current or RMS current, ठीक है। So here let it be equation 1, इसको बोल देते हैं equation 2। Here I can say to express AC power in terms of DC power, a special value of current is used, okay, which is called effective current or RMS current। RMS मतलब क्या होता है बच्चों, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था KTG वाले चैप्टर में कि RMS क्या होता है। इट इज नथिंग बट व्हाट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। सो इट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ व्हाट करंट एंड इट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव करंट। इसको इफेक्टिव करंट भी क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो तो whenever any AC power is expressed in terms of DC power, ओके। अब AC पावर है, यहाँ पर DC पावर है, तो आपको जो स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव करंट या RMS करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने RMS क्वांटिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड इन टर्म्स ऑफ करंट ऑलरेडी ये चैप्टर में हमने इनिशियली देखा हुआ है। मैंने एक वीडियो रखा, ये वीडियो में भी उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक सर रखने वाले हैं, ठीक है, कि RMS क्वांटिटी क्या होती है, कैसे हम लोग RMS वोल्टेज और RMS करंट फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव करंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो इफेक्टिव करंट ये वाला है, तो हम लोग ये इक्वेशन 1 और 2 को अभी कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो 1 और 2 को कंपेयर करना है, ठीक है भाई। तो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मैं।
तो देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपका डीसी था, ठीक है, दोनों पावर इक्विलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंपेयर करने पे आपको मिलेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई एम स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों देखो मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट आई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा आपका, देखो बच्चों ये आपका अंडर रूट क्या होगा, आई एम स्क्वायर बाय 2, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में से गया, तो ये आई एम एंड डिवाइड बाय रूट 2, तो ये जो आपका मिलता है स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आई आर एम एस, और इसको सिर्फ कैपिटल आई से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में हर जगह पे आप कैपिटल आई जहाँ पे भी दिखोगे वो आपका कौन सा होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, और जहाँ पे कैपिटल वी होगा वो क्या होगा, आरएमएस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये आपका आई आर एम एस करंट जो इक्वेशन मिलता है वो कितना होता है, आई एम बाई रूट 2। इन दैट केस आपको ये आई को समहाउ डिफरेंट तरीके से डिनोट करना पड़ेगा अगर आप कैपिटल आई को आई आर एम एस बोलते हो तो, ठीक है। तो ये आपका आई आर एम एस है, ठीक है, ये दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया और मैंने फाइंड आउट किया। तो अगर आपको यहाँ पे आई को समहाउ डिफरेंट डिनोट करो, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ आई डैश या कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका आई आर एम एस करंट मिल गया, दैट इज व्हाट, देखो आप जैसे इसका नाम है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, देखो मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर है। मतलब सबसे पहले क्वांटिटी का स्क्वायर करो जो कि मैंने यहाँ पे किया था, करंट का स्क्वायर, फिर वही करंट का यहाँ पे देखो ये मैंने एवरेज ले लिया क्योंकि आई एम साइन ओमेगा टी स्क्वायर जो ये टर्म था उसका एवरेज लिया, एंड देन आफ्टर लास्ट में उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एंड सेम एज आप VRMS इज इक्वल टू VM बाय रूट 2, ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये RMS करंट है, ये RMS वोल्टेज है। अब जब भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, आपको एग्जाम्पल में जब भी प्रॉब्लम देंगे ना, ठीक है, तो वो जो वैल्यूज होगी वो ऑलवेज किस में होगी, RMS में ही होगी। वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू होगी, RMS वैल्यू होगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना तो आपको प्रॉब्लम में मेंशन करके देंगे, अगर आपको मेंशन नहीं किया तो ऑलवेज आपको कौन सा लेना है, RMS वैल्यू ही लेना है, करंट का भी और वोल्टेज का भी, ठीक है।